So I'll just do introductory exercises today. And before doing introductory exercises, we'll discuss a little of synopsis and then we can continue further. So we know we have done this chapter in the 11th standard also, gravitation. Okay. Now the first and the most important thing which we are going to do is Newton's law of gravitation. Sums are based on Newton's law of gravitation, that is type 1 sums. Newton is telling you that, okay, in the universe, there are 2 point masses m1 and m2. Let them be separated by a distance of r. Newton says that they attract one another with a force, and this force is proportional to the product of the masses and inverse to the square of the distance between their centers. So if I remove the proportionality sign, a constant will come, and the constant was capital G m1 m2 by r square, where this G is called as universal gravitational constant. This all we have done it in 11th standard. So I'm just basically revising, and the value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kg square. And if you try to remove the dimensions of G, it will be F into R square by M1 M2, that is M minus 1 L3 T minus 2. This is very important and comes in the exam many times. So the dimensions of G is M minus 1 L3 T minus 2. Now there are some important note points which we need to understand. First important point, okay, that this force is independent of the medium. Although if you keep these two masses in water or in air or in vacuum, the force is going to remain the same. It will not change. So it is independent of medium in which the masses are placed. Second, it is conservative in nature. That is, I can say it is path independent. Okay. Or I can say work done in a closed loop will become equal to zero, because it depends on initial as well as final points. And if the initial and the final points are the same, then that will be the concept. And one more thing which we know, that if I tell you work done by conservative force, if you remember, minus of work done by conservative force is delta U, which is U final minus U initial. This formula, we have done it in our work energy power. Or what is the relation between energy and force? F is equal to minus du by dr. Okay, we have done this concepts, minus of work done by conservative forces, this much and this much. So these two are formulas whenever conservative force comes into picture. And what does U stand for? Potential energy. Because whenever there is a conservative force, the concept of potential energy comes into picture. Okay, and it is the weakest force in nature. These all are important points. Now, as a gravitational force can be applied where? This formula which is there, F is equal to G m1 m2 by r square,
Can be applied to 2 point masses. Yes, sir, it can be applied. Can be applied. Yes, it can be applied. So Fg. Can it be applied to two spherical bodies? Yes, sir. So two spherical bodies, M1 and M2. I can say the mass is concentrated at the center of mass. So this formula is applicable here also. Okay. This formula can also be applicable if there is a spherical body and other is a point mass. That is also applicable. Distances are measured from centers. This formula is also applicable here. So I'm talking about this formula, Gm1 m2 by r square is applicable in the first case, second case, third case. D. And look over here. If there is a rod or extended body, and if there is a point mass m2, this hole is m1. Now, if I take iska center of mass, and here this formula FFG is Gm1 m2 by r square is not applicable over here. Why, sir? Because if you see this point, this particle, can I say the distance is not r? If you see this particle, the distance is not r. Yes, you can assume the center of mass in the middle. But can I say these all particles which are there, small particles, they are situated at different distances from M2? So you cannot use the concept of center of mass over here. Okay, so concept of center of mass can't be used in this concept. ठीक है? So what we'll use integration. तो वो मैं सिखाऊंगा आपको integration कैसे करते हैं. That will come in the sums only. ये ध्यान रखना. But are you all there with me? Hello? Yes, sir. Okay, fine. So if there is an extended body, then you can't use the formula that is F is equal to G m1 m2 by r square. ये use हम लोग नहीं कर सकते हैं. We'll come to introductory exercise 13.1 and see what it says. ठीक है? 13.1 introductory exercise. Next time. These two introductory exercise we'll try to do, and we'll see what happens. ठीक है? Fine. See what is it telling you? देखो अगर मेरी बात सुनो. There are 5 questions, and then next time. 3 uniform spheres, each of mass m and radius a, are kept in such a way that each of them touches the other two. Find the magnitude of gravitational force on any of the sphere due to the other spheres. एकदम easy है. देखो क्या बोल रही है. There are 3 spheres which are touching each other in such a way that radii are kept in such a way that each touches each other. तो ये ठीक है. ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर. बाबा हेलो. यस और नो? एकदम इजी है ये. इसका मास m है. इसका मास m. How much is the distance between the two centers of any two? 1. 2 आ रहा है. 2 है. 2 है. 2 है. Find the magnitude of gravitational force on any one of the sphere due to the other two. अच्छा ठीक है. ये स्पीयर के ऊपर बात करते हैं हम. this sphere, ये वाले स्पीयर के ऊपर. Can I say ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स है, और ये भी इसको वही अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स है. यस और नो?
अच्छा, what is the angle between these two forces? बाबा हेलो, कितना एंगल है दोनों के बीच में? एकदम इजी है यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है ना ये. सो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन द टू 60 फोर्सेस? डिग्री 60 डिग्री. तो आपको जो एक चीज मैंने बताई थी कि अगर ये F हुआ और ये भी F हुआ और ये 60 हुआ, so what is the resultant answer? What is the 3F. resultant? Root 3F. This we know it from first only. Can I say F net on 1 will become root 3F? Root 3F. But what does F stand for? G M1 M2, that is MM by R square. But R between them is 2A ka square, will become 4A square. Hello, बोलो करेक्ट है क्या? हेलो, यस और नो? क्लियर है ना? ठीक है, चीज क्लियर है एकदम. क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m are placed at the corners of a square of edge A, side A. तो यहाँ पर there is a square of A side and masses are m, 2m, 3m and 4m. Find the gravitational force acting on a particle of mass m at the center. Okay, fine. So there is a mass m which is kept at the center. इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना एकदम आसान है. देखो मेरी बात सुनो. कैन आई टेक दिस रेफरेंस एज m और m के बीच में? कैन आई टेक द फोर्स एज F? तो कोई बता सकता है ये फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा m और 2m के बीच में? हेलो, अरे भाई, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 2F. m1 m2 ना. तो ये तो दोनों m है, तो फोर्स F ले लिया. तो यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा? 2F रहेगा. यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा और 3F रहेगा. और यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा? 4F रहेगा. आर यू गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों को सबको माइनस करके देखते हैं हम लोग. यहाँ पर सेंटर पे बात करते हैं. बस सेंटर में चलता है. तो कैन आई से जो ऑपोजिट है वो कैंसिल करते आएंगे. तो कितना कितना बचेगा? कमान, कैन आई से ये कितना बचा? 2F बचा. 2F. एंड ये कितना बचा? 2F बचा. एंड एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90 90. अच्छा, दोनों 90 होते हैं तो रिजल्टेंट आंसर कितना होता है? एंगल जब 90 होता है तो Root you know 2F. √2F it is there. Can I say this will be √2 times of individual? Hello? Yes, sir. So F net is going to become 2√2F. But what does F stand for? F is this ना भाई. F तो ये है ना. F क्या रहेगा? G M1 M2 that is M square by R square. अच्छा, R कितना है? It is half diagonal ना. हेलो, that will be A by √2. A बोलो. by root. तो A by √2 का स्क्वायर हो जाएगा A square by 2. तो ये हो जाएगा 4√2 GM square by A square. And direction will be vertically downwards only. हेलो, अरे क्लियर है ना भाई? ये सब स्केलर वेक्टर्स में भी हम लोग कर चुके हैं. ओके, दिस इज नॉट अ बिग डील. आई ऑल गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? हेलो, Yes, sir. सिंपल है यार. ओके, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 यू ऑल कैन डू. क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. Listen to me. 3 particles A, B, and C are situated. Each of mass m are placed in line with A, B, BC is equal to D. तो एक ही लाइन में प्लेस्ड है. A, B
एंड बी सी, और ये वैल्यू डी है यहाँ पर, ये मास एम है, ये भी मास एम है, ये भी मास एम है. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल of particle P of the same mass placed at a distance d from B on perpendicular bisector of AC. perpendicular bisector of AC मतलब ये लाइन पर है, इधर है, ये मास है और ये डिस्टेंस डी है, और इस जो मास है, ये जो मास इधर लगा हुआ है पॉइंट पी पर, इसके ऊपर फोर्स निकालना है. तो कहना इसे ये फोर्स तो इसको इधर खींचेगा, बराबर है क्या? ये फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये फोर्स इसको इधर खींचेगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. There are three forces. बराबर है. अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, तो वो जो हाइपोटेन्यूज वाला साइड है वो कितना रहेगा? √2d हो जाएगा. हेलो, Yes, sir. ये भी √2d हो गया. नेम दिस फोर्स एज F1, F, and this is also F1 only because magnitude तो सेम ही है. हेलो, yes or no? Can anyone tell me what is F1 का magnitude का वैल्यू? G m square by √2d का square will become 2d square. And what is F? बीच वाला GMM by d square. Can I say this is nothing but F by 2? हेलो यार बोलो, हेलो, Yes, sir. ये F by 2 है ना? अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये या तो F1 ही रहने दो ना, F by 2 नहीं करता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये. ठीक है, ऐसे रहने दो. ये बना F1, ये बना F1 और ये बना F. अच्छा, F1 और F1 के बीच में कितना एंगल है? बाबा बोलो मैन, कम ऑन टेल मी प्लीज. So what will be the resultant answer of F1 and F1? F1 √2 F1 हो जाएगा ना ये. कहना इसे F नेट ये बन गया F प्लस √2 F1. F प्लस √2 F1, F1 को लिख सकते हैं F by 2. So F plus F by √2. There will be F1 plus 1 by √2. And what is F? G m square by d square. 1 plus 1 by √2. Are you understanding what's happening? This is the answer. Clear है ना? Yes, sir. ये ठीक है. It is, I think again there are total 7 introductory exercises. बहुत easy chapter है ये. Okay, based on 1-1-1-1 concept we are doing some couple of sums. फिर mixed questions आएंगे, फिर खत्म हो जाएगा. ठीक है. Question number 5 पर आता है. ध्यान देना, question number 5 is a nice question. Spheres of the same material. Same material मतलब क्या सेम है? जब भी मटेरियल की बात करेगा तो किसकी बात होना चाहिए? Density. डेंसिटी सेम है, मतलब आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ रो. आंसर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी मतलब रो. ठीक है ना? ये याद रखना जब भी ऐसे बोलेगा. दे आर टचिंग ईच अदर ऑफ रेडियस आर. ये m है, ये m है. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 2r ना. Show that gravitational force is directly proportional to r raised to 4. Can I say gravitational force between them is G m1 m2 by r square? But G mm by r square. मास को लिख सकते हैं बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा r स्क्वायर. बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट r, दिस इज 2r ना. हेलो 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 हेलो, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर. तो कहना इसे सब प्रोपोर्शनलिटी साइन सब कांस्टेंट निकाल के ये हो जाएगा r क्यूब, और r क्यूब होता है r6 अपॉन r स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू r4. हेलो,
हेलो, यस और नो? Yes. Yes, sir. ये चीज बहुत फेमस है जनरली, तो ऐसे एक्सप्रेस करना है, जब भी डेंसिटी के टर्म्स में बोलेगा तो ऐसे एक्सप्रेस करना है, सिंपल ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। अगर आपने थोड़ा वीडियो देखा रहेगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट फटाक से आ जाएगा, वरना अगेन यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग। पहले जो वीडियोस मैंने भेजा है, देयर आर 3 वीडियोस व्हिच आर सेंट वेयर ऑल द डेरिवेशंस एंड एवरीथिंग आर प्रूव्ड इनसाइड, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। सो अब अगर उसको पढ़ लेंगे तो at least just see so that you can get acquainted with what is happening. Now I am coming to exercise 13.3, concept 13.3. That is, the name of the topic is acceleration due to gravity. Okay. यहाँ पर कुछ proofs है. Proofs I am not doing because that was done in 11th standard theory. So I'm just revising the basic concept. You know that F is equal to G बड़ा m छोटा m by r square. पता है ना? हेलो, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पर एक छोटा बॉडी m रखा है. Distance between them is r only. Distance between center to center is capital R ना, which is the radius. अच्छा, acceleration का फॉर्मूला तो मालूम है ना, नेट फोर्स अपॉन mass of the body. So can I say that will cancel, छोटा m will cancel and will become gm by r square. But acceleration is acceleration due to gravity due to the earth. So gravity due to the earth will become gm by r square. g का वैल्यू होता है 6.67 minus 11. Mass of the earth is 6 into 10 raised to 24. And r is 6.4 into 10 raised to 6 the whole square. And this answer will come 9.8 meter per second square. Hello, 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 hello. Yes or no? ये क्लियर है ना यार? तो ये चीज Sir. आना चाहिए आपको. g is gm by r square, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. This is acceleration due to gravity on the earth surface. It will become gm by r square. अच्छा, now variation in value of gravity. First variation is due to shape of earth. You know, earth is a spheroid. That is radius at the, मालूम है ना सबको? Radius at the equator is greater than radius at the pole, ना? Hello. Yes, sir. So g is gm by r square. So can I say g is inverse to r square? So जिसका r बड़ा रहेगा उसका g छोटा रहेगा. That means g equator is less than g pole. This is due to shape of the earth. Okay. Second, height above the earth surface. Very important. इसके ऊपर ही सम्स आते हैं एवरी ईयर. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये अर्थ है, तो मालूम है कैपिटल एम रेडियस आर. सपोज बॉडी यहाँ पर है एट अ हाइट ऑफ h अबव द अर्थ सरफेस. अगर बॉडी यहाँ पर होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता. बट बॉडी यहाँ पर है एट अ हाइट ऑफ h, तो ग्रेविटी का वैल्यू लेते हैं gh, विच इज ऑब्वियसली लेस देन g बिकॉज ऊपर जाते समय g का वैल्यू घट जाता है. gh का जनरल फॉर्मूला इज g बड़ो r स्क्वायर अपॉन छोटो r स्क्वायर. एंड व्हाट इज छोटो r स्टैंड फॉर? r plus h the whole square. Are you understanding? Hello, 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 hello. ये किया हुआ है भाई 11 में. Yes or no? अरे भाई Yes, yes. Oh, this is all done. So I will generally be using these formulas. ये फॉर्मूला, इसका और एक फॉर्मूला है जो डीसी पांडे में दिया हुआ है. जनरली मैं वो यूज नहीं करता हूँ. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये आर स्क्वायर को नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर. हेलो भैया, आर को नीचे ले लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या किया?
हेलो, Yes, sir. हाँ अब कैन आई मेक दिस अ बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 plus h by r raised to minus 2. So g 1 minus 2h by r, okay, when h is very much lesser than r. ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन h इज वेरी स्मॉलर देन r. यस और नो? हेलो, तो अगर बहुत कम हाइट है रेडियस के मुकाबले, रेडियस का वैल्यू कितना है? 6400 किलोमीटर. हेलो, रेडियस का वैल्यू कितना है बेटा ऑफ दी अर्थ का? 6400 किलोमीटर. और अगर आप सपोज जा रहे हो 32 किलोमीटर पर ही, तो कैन आई से h इज वेरी लेस देन r? हेलो, तो क्या आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो. Getting it, this formula is only applicable when h is very smaller than r. And what about this formula? This is general formula. आप किधर भी लगा सकते हो इसको, ये general है. And this formula is only applicable when h is lesser than r. याद रखना ये चीज का. हेलो, हेलो, यस और नो? क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीजों का. फॉर्मूला अगेन वी हैव डन दिस, द होल चैप्टर विद डेरिवेशन वी हैव डन. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, डेप्थ below earth surface. The earth, and this is center. ऊपर यहाँ पर अगर बॉडी है तो g है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट सपोज इट गोज एट अ डेप्थ d, यहाँ पर आ गया तो ग्रेविटी हो जाएगा gd. एंड gd का फॉर्मूला क्या रहेगा? g1 minus d by r. बेटा वेयर इज d measured from? Where is d measured from? Depth is always measured from. Depth is always Surface. measured from surface. हाँ भाई, ये is measured from surface. हाँ, अच्छा इसका और एक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये मैं यूज करूंगा ये. ओके, सब फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते बेटा. एक फेवरेट फॉर्मूला बनाओ उसको यूज करो, ठीक है? ये मैं यूज करूंगा. अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूला दिया हुआ था, जी डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी बाय आर. कैन आई टेक आर माइनस डी एज छोटो आर? नाउ कैन यू टेल मी वेयर इज दिस छोटो आर टेकन फ्रॉम? व्हाट इज छोटो आर स्टैंड फॉर? आर माइनस डी. हेलो, अरे भाई ये आर है ना, कैन आई से दिस विल बी छोटो आर? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो छोटो आर इज टेकन फ्रॉम वेयर? मेजर्ड फ्रॉम Center. सेंटर. याद रखना, फ्रॉम सेंटर. अच्छा, सेंटर पे जाएंगे तो जीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बिकॉज कैन आई से यहाँ पर जीडी इज प्रोपोर्शनल टू छोटो आर ना, एंड एट द सेंटर छोटो आर विल बिकम जीरो ना. हेलो यार बोलो, ग्रेविटी एट द सेंटर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो कैन आई से जीडी इज प्रोपोर्शनल टू आर, ओके, इनसाइड द अर्थ, एंड जीएच is inversely proportional to r square outside the earth. हेलो 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 हेलो, एंड जी सेंटर जीरो है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर जी वर्सेस आर, कैन आई से इसको सेंटर पकड़ता है, ओरिजिन को, ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट होगा. इनसाइड द अर्थ जी इज प्रोपोर्शनल टू आर. कब तक? जब तक वो सेंटर सरफेस पे नहीं पहुंच जाता. सरफेस पे जी का वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम ना, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन इट इज इनवर्स टू आर स्क्वायर, मतलब इट विल बिकम अ पैराबोला. हेलो,
हेलो हेलो हेलो, हाँ ना बोलो। अरे भाई, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग ये इजी है, ये आ चुका है, बहुत टाइम आ चुका है जेई पेपर में। ग्राफ, हाँ ये वाला ग्राफ, इसका ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली वी डू विथ ये डी पॉइंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ है, हमको मालूम है ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, और बॉडी यहाँ पर है, सर्कल में घूम रहा है। आप सपोज लंदन में हो, ओके, यस और नो? तो ये एंगल को लैम्बडा पकड़ता है, उसको बोलता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड। वे लैम्बडा इधर इक्वेटर कितना होता है, 0 होता है, एंड लैम्बडा इधर पोल कितना होता है, 90 होता है। यस और नो? हेलो, Yes, sir. दिस इज ग्रेविटी। यहाँ पर जो इंसान लंदन के अंदर है, इसको बोलेगी, इसका ग्रेविटी को बोलेगी जी लैम्बडा। जैसे हाइट पर जाते थे तो बोलते थे जी एच, अंदर जाएंगे तो बोलेंगे जी डी। वैसे ही एट एनी latitude angle it is g lambda, which is proved it is g minus r omega square cos square lambda। ये प्रूफ किया था 11 में। g lambda is equal to g minus r omega square cos square lambda। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर प्रूफ चाहिए तो मेरा वीडियो देख लो, तो आपको आ जाएगा। ओके, आई डोंट हैव टाइम टू रिपीट अगेन ग्रेविटेशन व्हिच वाज डन इन द 11th स्टैंडर्ड अगेन। ओके, यहाँ पर अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो lambda is 90, कैन आई से g equator will become g only, and अगर मैं पोल sorry will become r omega square। equator is equator is 0 ना, lambda is 0 over here, lambda at equator is 0। अगर मैं पोल की बात करूँ तो lambda pole will become 90, g pole is going to become g। तो इक्वेटर पोल से कितना बड़ा है, इक्वेटर पोल से कितना बड़ा है, और सॉरी पोल इक्वेटर से कितना बड़ा है? अरे भाई कितना बड़ा R है? omega square. r omega square। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्चुअल आंसर। हाँ, r omega square, and r omega square का वैल्यू है 0.03, 0.036 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आ जाएगा उधर से, ठीक है ना? दैट इज द होल केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 पॉइंट्स। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब हम लोग इसी के ऊपर सम्स करते हैं, इसी के ऊपर सम्स हम लोग करेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। Introductory exercise 13.2 I'm discussing। ध्यान दो इधर। Value of g on the earth surface is 9.8। स्लाइड्स दिख रही है ना? Can you see? Yes, sir. Value of g on the earth surface is this much, 9.8 है। Its value on the surface of the planet whose mass and radius both are 2 times। एकदम इजी है। g का वैल्यू कितना है? g m by r square। कैन आई से इट इज प्रोपोर्शनल टू m by r square। कह रहा है ये 2 गुना हो गया और ये डबल हो गया, मगर ये डबल का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये कितना हो गया प्रोपोर्शनलिटी? हाफ हो गया। So can I say gravity on the planet becomes half of gravity on the earth? If gravity on the earth is 9.8, which is given, hello hello, do you know how to do? यार बोलो। Yes, sir. हेलो, ये तो इजी है यार। ओके,
मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? हेलो हेलो हाँ सर। भाई, ठीक है ना? हाँ, वरना एंड में इट विल बी टोटली स्पॉइल्ड इफ आई गो फास्ट। आपको आ जाना चाहिए ये, बिकॉज दिस वाज डन इन 11th अगेन। वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा है। The value of g on the earth surface is 9.8. Find the value of height h equal to r and depth equal to r by 2. एकदम आसान है। पहले हाइट के बारे में बात हो रही है, तो जी एच का वैल्यू ले लेंगे। जी एच इज इक्वल टू जी बड़ो आर स्क्वायर अपॉन छोटो आर स्क्वायर। दैट इज जी बड़ो आर स्क्वायर अपॉन छोटो आर इज आर प्लस एच द होल स्क्वायर. But h in the question is given as r. It become g bado r square upon r plus r the whole square. So g big R square upon 4r square. तो ये हो जाएगा g by 4. क्लियर है? दिस इज द ए पॉइंट. बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं? जीडी का वैल्यू अप्लाई करना है, दैट इज जी 1 माइनस डी बाय आर. 1 माइनस डी, डी की जगह r by 2 लिखना है by r. 1 minus half will become g by 2. Yes or no? Hello. It's just formula application. Hello. क्लियर है ना? ये है ओनली फार्मूला एप्लीकेशन. और जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, तो आप इसको 9.8 by 4 भी लिख सकते हो. एंड दिस इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. क्वेश्चन नंबर कौन सा बना था ये? 2 था ना. अब आते हैं 3 की तरफ. Calculate the distance from the surface of the earth. Distance from the surface of the earth मतलब क्या चाहिए आपको? h चाहिए. At which acceleration due to gravity is same as that of the depth below. Okay, hello. Okay, ध्यान दो इधर. Pay attention. Just telling you. So यहाँ पर calculate the distance from the surface of the earth at which acceleration due to gravity is same below and above the surface of the earth. मतलब यहाँ पर आता है और यहाँ पर जाता है. यहाँ पर वैल्यू जी एच होता है और यहाँ पर वैल्यू होता है जी डी. यस और नो? हेलो. यस सर. तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा. लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स फ्रॉम हियर. सेम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम हियर वेयर जी एच का वैल्यू एंड जी डी का वैल्यू सेम हो जाएगा. ओके. Calculate the distance from the surface of the earth at which acceleration due to gravity is same below and above the earth. तो एक डिस्टेंस x ऊपर भी और नीचे भी सेम डिस्टेंस x पर. gh का वैल्यू और gd का वैल्यू सेम हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली यू रिक्वायर व्हाट? यू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x. कैन आई से gd का वैल्यू और gh का वैल्यू सेम होना चाहिए. गिवन है. gd is g 1 minus d by r. t की जगह x by r and gh is g big R square upon small r square. Small r is r plus h the whole square. Hello. हेलो. यस और नो? क्लियर है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस एक्स बाय आर? इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय आर द होल स्क्वायर. हेलो. यस Yes, और sir. नो? अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय आर द होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू 1.
Hello. Can I write this as 1 plus x by r? ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको? Yes, sir. सही है ना? हेलो. Yes, sir. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय आर. ओके. माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 1. हेलो. यस और नो? Yes, sir. ओके. अभी इसको ओ साइड पे ले लेते हैं. ये 1 और 1 तो कट ही जाएगा. ये बनेगा एक्स क्यूब बाय आर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू 0. हेलो. हेलो. यस और नो? Yes, sir. अब क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में, सब में? X by R. एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स बाय आर माइनस 1 इक्वल 0. तो ये टर्म तो कोई मतलब नहीं रखता है. दैट इज इक्वल टू 0. ये टर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. हेलो. व्हाट इज ए का वैल्यू? ए का वैल्यू कितना? ए बी सी का ए का वैल्यू कितना रहेगा बेटा? A is हेलो. 1. ए इज 1 ले सकता है एक्स बाय आर द होल स्क्वायर. बी का वैल्यू कितना है? R. ओके. बी का वैल्यू क्या है? या तो इसको अगर एक्सप्रेशन हम लोग एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ही लिखे तो कैन आई राइट दिस एज ए का वैल्यू है 1 बाय आर स्क्वायर, बी का वैल्यू है 1 बाय आर एंड सी का वैल्यू -1 हो जाएगा. हेलो. हेलो हेलो हेलो. यस और नो? Yes, हेलो. sir. ये भी ठीक है ना? अब इधर से रूट्स निकालो आप लोग एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इतना कर सकते हो. यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. ठीक है. दिस इज हाउ यू डू इट. यू गेट x in terms of r. क्लियर है ना? Yes, फाइन. sir. क्वेश्चन नंबर 4. कैलकुलेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट एल्टीट्यूड दिस मच. चेंज मतलब ओके. देखो इधर एल्टीट्यूड एंगल जो था वो लैटिट्यूड एंगल g लैम्बडा इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा. So they are asking you what is g minus g lambda. Difference पूछा है ना. So that will be r omega square cos square lambda. This is asked, okay? That is g minus g at 45 degree. It become r omega square cos square 45. 1 by root 2 का square 1 by 2 तो r omega square by 2 हो जाएगा ना. Hello. This is 0.036 divided by 2 will be the answer. ये r omega square मालूम है ना. r का वैल्यू होता है 6.4 into 10 raised to 6 and omega वो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 pi by t. हेलो. हेलो. टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ कितना होता है? 86,400 किलोमीटर ना. यस और नो? यस और नो बाबा. हेलो. तो आर ओमेगा स्क्वायर साइड में निकाल के आप लोग रख सकते हो. 6.4 into 10⁶ and this will be 2 pi by t. Time period is 86,400 whole square. Getting it? 0.0 कितना आएगा? 36 के आसपास कुछ है. 32 या 36 वो देख लेना आप लोग. और उसको डिवाइड बाय 2 करना है ना यहाँ पर बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 2.
Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. ये एक्चुअल आंसर आई थिंक 0.336 है. एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट, आई गिव इट टू यू द वैल्यू ओनली. 2 मिनट रुको. 160 या 0.336 आएगा. ये नहीं है. ये हो जाएगा 0.0168. ये आंसर याद रखना है. 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हेलो. लर्न बाय हार्ट. बेटा ये सब कैलकुलेट करने कौन बैठेगा, ठीक है ना. हेलो. यस और नो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है. At what height from the surface of the earth will gravity be reduced by 36%? By 36 मतलब कितना हो गया? 64. 64% हो गया. तो GH is going to become 64% of G ना. ये तो इजी है. GH का वैल्यू मालूम है ना. G बड़ो आर स्क्वायर अपॉन छोटो आर स्क्वायर. ये दिया हुआ है. ये जी वैसे ही उड़ा दो. स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 8/10. ऐसे करो बड़ो आर स्क्वायर बाई छोटो आर स्क्वायर. सॉरी, स्क्वायर निकल गया, बस रूट निकाल दिया हमने. अब कैन आई से क्या हो जाएगा ये? 8 छोटो आर इज आर प्लस एच इज इक्वल टू 10r. सो 8r प्लस 8h equals 10r. So 8h will become equal to 2r. So h is going to become r by 4. That is 6400 by 4. That is 1600 किलोमीटर. हेलो, बोलो भाई. यस और नो. Yes, sir. ये चीज ठीक है. तो ये देखो, ये जनरल फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया. ये जो फॉर्मूला था दैट वाज नॉट शॉर्टकट, इट वाज जनरल. तो आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज जो है वो कम नहीं है, ज्यादा परसेंटेज चेंज है. एंड ये जो फॉर्मूला है ना, GH इज इक्वल टू G1 minus 2h by r is generally applicable for percentage change less than 10%. हेलो, ये 36% का चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर तो जनरल फॉर्मूला ही लगेगा. शॉर्टकट फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, रॉन्ग आंसर आएगा विद द एरर. फाइन. क्वेश्चन नंबर 6. आई डू दिस मच टाइप होनी है. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे. नेक्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कशन हो जाएगा. एंड देन दो, आई थिंक 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. इजी चैप्टर होंगे. थोड़ा सी वीडियो देख लेना सर. डिटरमाइन द स्पीड एट विच द अर्थ वुड हैव टू रोटेट, मतलब ओमेगा मांग रहा है. सो दैट द पर्सन एंड द इक्वेटर वुड वे 3/5 ऑफ दैट मच एज प्रेजेंट. तो रोटेशन की बात है. रोटेशन के लिए तो जी का फॉर्मूला मुझे पता है ना. जी इज इक्वल टू जी लैम्बडा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा. और यहाँ पर बात हो रही है इक्वेटर की. इक्वेटर पे जी लैम्बडा कितना होता है? लैम्बडा कितना होता है बेटा इक्वेटर पे? 0. 0. So can I say G equator will become G minus R omega square? This is okay with the formula. अच्छा, यहाँ पर वेट की बात हो रही है. यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हेलो, वेट की बात हो रही है. अच्छा, वेट डिपेंड्स ऑन व्हाट? भाई वेट डिपेंड्स ऑन, ये तो कांस्टेंट है ना यार. तो कैन आई से वेट विल बी प्रोपोर्शनल टू जी ना. हेलो. Yes, sir. अच्छा, तो ये फॉर्मूला मेरे काम का है. मतलब ये हो गया ना. ये कितना मांगता है उसको? 3/5 ऑफ दैट ऑफ प्रेजेंट. दिस इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? हेलो. या तो ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक काम करो, बेहतर है m से मल्टीप्लाई कर दो.
एक्चुअली वही चीज है, एम जी इक्वेटर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. हेलो, आर यू गेटिंग इट? हेलो, ये वेट बन गया ना अभी, ये वेट बन गया कि नहीं? हेलो, अच्छा ये वेट एट इक्वेटर है, कितना मांगता है ये वेट कितना होना चाहिए? 3/5 ऑफ राइट नाउ का वेट. कैसा नो? हेलो, ये हो जाएगा 2/5 ऑफ एम जी इस एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम एम देखो वैसे ही उड़ गया है, तो ओमेगा कितना आएगा? 2/5 जी बाई आर रूट ऑफ दैट. सो ओमेगा अर्थ को कितना घूमना मांगता है? 2/5 इंटू जी बाई आर root of that. This you can calculate and get the resultant answer. Hello, hello, बोलो. So, but 3/5 of present means 3/5 into mg minus mr omega square. 3/5 of present which was there on the earth surface ना. present मतलब क्या? अभी का वेट कितना है आपका? mg है ना. So, but right now, if I'm on the Right now equator, we are not considering the rotation of the earth. Okay, 3/5 okay, of sir. that of present मतलब 3/5 of mg. आपकी बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. 3/5 ऑफ एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओके, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें, तो जनरली वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट 3/5 ऑफ 9.8. हेलो, Okay, sir. 3/5 ऑफ 9.8 करेंगे ना. फाइन. क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है. A body is weighed by a spring balance to be 1000 Newton at the North Pole. How much will it weigh at the equator on the account for Earth's rotation only? खाली अर्थ के रोटेशन के बारे में बात करनी है और कुछ बात नहीं करनी है. एकदम आसान है. व्हाट इज ग्रेविटी इक्वेटर एंड ग्रेविटी पोल के बीच में डिफरेंस कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने. जी पोल माइनस जी इक्वेटर का वैल्यू कितना है? 0.0336. 0.0336 ये वैल्यू है. ठीक है ना. ओके, अब ये चीज है. ठीक है. A body weighs by a spring balance to be 1000 Newton at the pole. तो can I multiply by m throughout? सही है ना. mg pole minus mg equator is mr omega square. ये कितना है? 1000 न्यूटन है. सही है. माइनस mg इक्वेटर. mg इक्वेटर मांग रहा है ना. and mr omega square, can I write this as m into 0.0336? हेलो, 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 यार बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अच्छा, और एक बात है, यहाँ पर m प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई नो दैट एम जी पोल इज 1000, ये दिया हुआ है. बट व्हाट इज जी पोल का वैल्यू? ग्रेविटी एट पोल का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है, मैक्सिमम होता है ना. तो m कितना हो जाएगा? हेलो, अरे यस और नो. हेलो, यस और नो. So, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू जी इक्वेटर. ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.0336. यहाँ से जी इक्वेटर का वैल्यू आपको मिल जाएगा. once you get g equator you can get mg equator also. या तो इनडायरेक्टली mg equator ही पूछा है ना आपको. हाउ मच विल इट बी एट द इक्वेटर. हाँ, तो ये सब लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है. देखो ना, इसको mg इक्वेटर को ऐसे ही रहने दो. हेलो, हेलो, दिस इज आस्क ना. यस और नो, यस और नो बेटा. yes, sir. तो वेट एट इक्वेटर ही पूछा है. दैट आंसर विल कम 997 न्यूटन आ जाएगा यहाँ से मैनिपुलेट करने पर. ठीक है.
So I hope you all are understanding 997. Let's leave that. Yeah, accounting only for rotation, not the shape of the earth. Question number 8 पर आता है. Question number 8. Assume Earth to be spherical. At what height above the North Pole will the value of G is same as that of the Earth's surface? मतलब क्या बोल रही है? At what height? क्या हो रहा है? Fine. एक मिनट. This is not question number 8. I don't think so. Question number 8 है क्या? This is question number 9 है actually. It's question number 9. No, sir, it's 8 in DC Pandey. Okay. So just change right. So ठीक है. देखते हैं. There are Question only number- 8 questions. There are only 8 questions. Yes, sir. Okay. एक क्वेश्चन कम हो चुका है. ठीक है. और एक क्वेश्चन मैं सिखा दूंगा आपको. That is a nice question. Actually पुरानी बुक के अंदर there are 9 questions. ठीक है. Assuming Earth to be spherical, at what height above the North Pole the value of G is same as that of the Earth? The GH is same as G surface. ये बोल रहा है. GH का फॉर्मूला वाला मैंने G बड़ो R स्क्वायर अपॉन छोटो R स्क्वायर. छोटो R is R plus H the whole square. And G value is same as that of the surface of the equator. So surface of equator की बात हो रही है. हेलो. What is equator का वैल्यू? G equator क्या होता है? G minus R omega square ना. हेलो. Yes, sir. G minus R omega square. अब इधर ध्यान देना, मेरी बात सुनो, कैसे कैलकुलेट करना है. देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. 9.8 बड़ो R 6.4 into 10 is to 6 the whole square. इसको जैसा है वैसा रहने दो. एंड में कैलकुलेट करना. What is this G? 9.8. What is R omega square? तो इसे रेडीमेड दे के रखा है मैंने ताकि कैलकुलेशन 0.0. क्लियर है. तो यहाँ से दोनों को, यहाँ से आपको R प्लस एच मिलेगा. और एक बार R प्लस एच मिला, R का वैल्यू तो मालूम है ना 6400 किलोमीटर. तो एच का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू? हेलो यार देखो Yes, sir. करेंगे ना. तो ये चीज है. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. देयर इन द ओल्ड बुक बट इट इज अ नाइस क्वेश्चन. क्या बोल रही है कि अर्थ को इतना घूमना चाहिए, अर्थ का कितना रोटेशन होना चाहिए ताकि उसका जो ग्रेविटी हो जाए एट इक्वेटर 0 हो जाए. अभी फिलहाल ग्रेविटी का वैल्यू कितना है अर्थ पे? इक्वेटर पे, सॉरी अर्थ पे नहीं, इक्वेटर पे कितना है? 9.8 minus 0. या G माइनस R ओमेगा स्क्वायर. हेलो, ये फॉर्मूला है. वी वांट वेटलेसनेस at equator. What do you mean by weightlessness at equator? G equator should be equal to 0 ना बेटा. 0. So that means इसको 0 वैल्यू डाल दो. तो G minus R omega square. So G should become equal to R omega square. So omega will become under root G by R. ये याद रखना. This omega should be under root G by R. और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए अर्थ का? टाइम पीरियड मालूम है अर्थ का फॉर्मूला? 2 पाई बाय ओमेगा ना बेटा. हेलो हेलो. अर्थ के रोटेशन का टाइम हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा ये है, उल्टा करो, रूट ऑफ R बाई G आएगा. हेलो. तो दिस टाइम पीरियड विल कम 84.6 मिनट्स. मतलब आज कितना है अर्थ का टाइम पीरियड? हेलो 24 hours. 24 आवर्स है ना. अगर
टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ हो जाए 84.6 मिनट्स, तो देयर विल बी वेटलेसनेस एट द हेलो इक्वेट इक्वेटर। आज जी का वैल्यू कितना है? आर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है ना, आज है 24 घंटे के बावजूद ये आंसर है। बट अगर 84.6 मिनट्स हो जाए तो ओमेगा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने के कारण सब हवा में उड़ने लगेंगे। किधर? इक्वेटर पे। हाँ हेलो हेलो, Yes, sir. पोल को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? व्हाट इज जी पोल का फॉर्मूला? जी पोल इज जी ओनली ना। कैन आई से दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा? तो अर्थ चाहे फास्ट घूमे, स्लो घूमे, रुक जाए, पोल वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पोल वाले का वजन वही रहने वाला है। बट इक्वेटर वाले को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा। हेलो हेलो, तो ओमेगा अगर फास्ट घूम रहा है, अगर अर्थ बहुत फास्ट घूम रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है कि देयर विल बी वेटलेसनेस एट द इक्वेटर एंड दैट टाइम पीरियड विल बी 84.6 minutes at which equator will experience weightlessness. This comes in the exam. Okay, ध्यान रखना है इसका। Getting it? ये चीज याद रखना है, ये आगे पढ़ाई जाएगी आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इसका कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये 84.6 मिनट्स का याद रखना। इट इज 8077 सेकेंड्स। सेकेंड्स में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 8077 सेकेंड्स आएगा। ओके, so I hope we have done with gravitation. 2 sections we have done properly. I don't want to go to the third section, और बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो next time we'll be doing 2 more sections, that is 13.3 and 13.4, and then 5, 6, 7 साथ में कर लेंगे, and then next week we'll finish off with gravitation. ठीक है? आप लोग वीडियो अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Hi, sir. Thank you. Bye, sir.